Hi, I'm Thompson Finney. Thank you, Dauntless Pulpit, for inviting me over to share from God's Word. Thank you, Joel Christian, as well, for the opportunity you have given me right now. Let us start today's meditation on God's Word with a word of prayer. Heavenly Father, you are a great God. You are a good Father. We worship you. We adore you. You are King of Kings. You are Lord of Lords. Lord, we come to your presence today, seeking to learn from your word. Lord, we know that we cannot understand your word from our natural human wisdom, Lord, but we need your grace. We need your Spirit's leading, Lord. Lord, as we ponder for a few moments on your holy word, speak to us from it, Lord, and help us to be edified by it. Help us to lead our lives by it, Lord. Let it not just be a hearing and going away as it is, but let it transform and change our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So I'm very excited to speak today from God's word from just one verse. We are going to look at just one verse today. Romans chapter 1, verse 1. आज के हमारे इस मनन के लिए मैं बहुत ही उत्तेजित हूं। हम केवल एक पद पर मनन करने वाले हैं और वो है रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला पद। I believe that God's word, as Timothy 3:16 says, all of God's word is inspired by the Holy Spirit. मैं मानता हूं जैसे तिमोथियुस की को लिखी गई पत्री में पौलुस कहता है कि हर एक प्रभु का वचन जो है वो परमेश्वर प्रेरित है। So what we are going to do in Romans chapter 1 verse 1, we are going to dissect each word in this one verse, and let's see what God wants to teach us from it. Okay. तो इसलिए आज के मनन के लिए हम जो करने वाले हैं वो ये है कि रोमियो की पत्री पहला अध्याय और पहले पद को हम पूर्ण रीति से तोड़ने वाले हैं और हर एक शब्द पर हम मनन करना चाहते हैं उसके अंदर से। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इससे क्या सिखाना चाहता है। Now it is true to say that the greatest need in the world today is for the gospel to do its work. और ये सत्य बात है अगर कि हम ऐसे कहें कि आज के संसार के अंदर, आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम जो है वो सुसमाचार का कार्य करना है। Our greatest need is not a political need. It is not a sociological need. It is not a financial need. It is not even about creating new jobs. That is not the greatest need today. It is not even feeding the poor. That is not the greatest need today. आज की हमारे जो संसार की सबसे बड़ी जरूरत वो कोई राजनीतिक जरूरत नहीं है, वो कोई सामाजिक जरूरत नहीं है, वो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक जरूरत नहीं है, गरीबों को खाना खिलाना ये भी हमारे आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है। These are all needs. I'm not saying they are not important, but these are all secondary needs. The one single need today is for the gospel to do its work. ये सब भी जरूरी चीजें हैं, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये प्राथमिकता में दूसरे स्तर पर आती है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राथमिक जगह पर प्राधान्य देने वाली जो बात है वो सुसमाचार की बात है। And when the gospel is put into work, it puts everything else in its right order. और जब सुसमाचार कार्यरत होता है तो उसके कार्यरत होने से बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। The number one problem, the greatest problem that we have today is the problem of sin. It is sin that separates us from God. It is sin that puts us under the wrath of God. It is sin that condemns us all to eternal punishment. So the greatest need of any person in this world is addressing the sin problem. आज के संसार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पाप, क्योंकि पाप ही एक ऐसी चीज है जो हमारे और परमेश्वर के मध्य में खड़ी रहती है। पाप ही ऐसी चीज है जो हमें दोषित ठहराती है। पाप ही ऐसी चीज है जो परमेश्वर के कोप के अंतर्गत हमें रखती है, उनके गुस्से के अंतर्गत हमें रखती है। इसीलिए हमें इस पाप की जो हमारी समस्या है इससे हमें छुटकारा प्राप्त करने की आवश्यकता है। So there is no better place than to address this issue. We can find God's solution to our sin problem. There is no better place than the book of Romans.
तो ये पाप की जो समस्या है उसका छुटकारा पाने के लिए, उससे छूटने के लिए रोमियो की पत्री के अलावा उससे अच्छी पुस्तक नहीं हो सकती है। Now, looking at the book of Romans, no, it is Paul's major writing, no, among all his other epistles. No, Romans is the Mount Everest. It stands very tall among all the other New Testament epistles. अगर पत्रियों की बात करें नए नियम के अंदर, तो वहां पर पौलुस के जितनी भी लिखी थी, जितनी भी बातें पौलुस ने अलग अलग पत्रों में लिखी, उसमें जो रोमियो की पत्री है, ये हर एक रीति से सबसे उच्च स्तर पर खड़ी होती है। Yeah, Augustine, Martin Luther, John Wesley, John Calvin, all great men of God. These men's life were radically changed after they read the book of Romans. आपको पता है कि ऑगस्टिन, संत ऑगस्टिन जो था, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन वेस्ली, ये सब महान प्रवक्ताएं थे जिनके जीवनों में परिवर्तन जो था वो रोमियो की पत्री पढ़ने से आया था। No, Martin Luther, he called Romans as the gateway to heaven. मार्टिन लूथर ने कहा कि रोमियो की पत्री जो है वो स्वर्ग का द्वार है। He called it an open door into paradise. उसने कहा कि ये पारादेश में जाने के लिए खुला दरवाजा है। Yeah, and this is what Martin Luther further had to say. Every Christian should know Romans word for word. They should know it by heart. और उसके आगे मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा था कि हर एक मसीही विश्वासी को रोमियो की पत्री शब्द से शब्द मुखपाठ होनी चाहिए। And they should occupy with Romans every day as their daily bread of the soul. और दिन प्रतिदिन अपने आत्मा के अन्न की तरह उन्हें ये रोमियो की पत्री को ग्रहण करने की आवश्यकता है। So one of the very important topics that you would see in the book of Romans is about the gospel. The gospel. That is why this one particular word, gospel, is seen repeated many times. Even in the first chapter itself, mentioned many times. Gospel, gospel, gospel. और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक या फिर विषय के ऊपर जिसके ऊपर पौलुस रोमियो की पत्री में निरंतर बारंबार लिखते रहता है, वो तो सुसमाचार है। पहले अध्याय का भी यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले अध्याय में भी वो अनेक बार ये सुसमाचार शब्द का उपयोग करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पूरी पुस्तक के लिए। Because the gospel is God's solution to man's greatest need, to address his sin problem. क्योंकि ये जो सुसमाचार है वो मनुष्य को सबसे बड़ी जो समस्या है, पाप की समस्या, उसको सुलझाने का एक उपाय है। So Paul now he is writing this letter to the Romans, to the church in Romans, and he tells them that I want to come there. I want to come and be with you guys over there. तो यहाँ पर पौलुस अभी रोमियो की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है और वो पत्री में कह रहा है, अपने हृदय को खोलते हुए कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुम्हारी मुलाकात लेनी है। Yeah, he says that in chapter 1 verse 15. He says that. और 15 के अंदर पौलुस इस बात को लिखता है। Yeah, so why does Paul want to go to Rome? What is so special about Rome? To reach Rome was to reach the entire Roman Empire. और यहाँ पर पौलुस रोम को क्यों जाना चाहता था? उसकी मनोकामना क्यों ये थी? रोम को पहुंचना मतलब पूरे रोमन साम्राज्य तक पहुंचना था। No, Romans, they already conquered at least 3/4 of the world. So Paul very strategically, he goes to this place and he puts the gospel over there. He knows that if he puts the gospel there, it would create a ripple effect throughout the whole world. और हमें पता है कि ये जो रोमन साम्राज्य था, विश्व का ज्यादातर भाग उन लोगों ने अपने राज के अंदर ला दिया था। इसीलिए पौलुस बहुत ही दृढ़ता से, चातुर्य से वो कहता है कि मुझे रोम में आके सुसमाचार प्रचार करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुसमाचार को ग्रहण कर पाएंगे अपने जीवनों के अंदर। Now, Rome was not a very easy city to reach with the gospel. During Paul's day itself, there were at least 10 lakh, 1 million people living in Rome. और रोम जो जगह थी वो सुसमाचार के लिए इतनी आसान जगह नहीं थी। अगर पौलुस के समय की हम बात करें तो उस समय भी रोम के अंदर कम से कम 10 लाख लोग रहते थे। You will find every kind of false sin under the earth, every kind of paganism, hedonism. It was all compressed in this one place called Rome. और रोम एक ऐसी जगह थी जिसके अंदर हर एक प्रकार के पाप को हो, हर एक प्रकार के गलत शिक्षण को हो, हर एक प्रकार के अंधश्रद्धा को हो, सब की सब चीजें जो थी वो एक ही जगह ये रोम में आई थी। Yeah, and Rome also had very good magnificent buildings. It had the emperor's palace. It had the Roman Colosseum.
it had the Circus Maximus. It was a city of immense power. और यहाँ पर ये जो शहर था, रोम शहर जो था, वो बहुत ही सामर्थ्यवान शहर था। इसके पास बड़ी बड़ी इमारतें थी, ऐसे बड़े बड़े राजघराने थे, राज पैलेसेस थे, जिसके अंदर पूरे शहर के अंदर वो उससे घिरे हुए थे। Now, you not just a city of immense power, it had the military power. It had the most powerful armies in the world during those days. It was the political base, it was the military base, it was the financial base, it was the educational hub. So Paul very strategically he goes to this place called Rome and he puts the gospel in the marketplace. और यहाँ पर जो रोम जो जगह थी, वो ना ही केवल बहुत ही अच्छे सामर्थ्य की जगह थी, परंतु वहां का जो शिक्षण था वो सबसे उच्च स्तर का था। वहां की अर्थव्यवस्था सबसे उच्च स्तर की थी। वहां पर हर एक प्रकार की जिस प्रकार की राजनीतिक एक केंद्र था, वो एक बड़े से साम्राज्य का। और उस तरह से हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो बहुत ही चातुर्य से सुसमाचार को रोम में जाके वो डालना चाहता था। Paul knows that God has put his power in the gospel message. God has not put his power in any other things, only in the gospel. That is what he goes on to say in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation for everyone who believes. और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को किसी और चीजों में नहीं, परंतु सुसमाचार में रखा हुआ था। इसलिए वो 1 और 16 में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। Sadly, these days we come across a lot of churches doing a lot of things to attract people to the church. No, but we are failing to understand that the power is in the gospel message. It is that what draws people to Christ. और यह बहुत ही दुखद बात है जब हम आजकल की कलीसियाओं को देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार की चीजें या फिर प्रवृत्तियां करके लोगों को आकर्षना चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ। मैं ये नहीं समझ पाता कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो सामर्थ्य है वो सुसमाचार में है। सबसे मसीही विश्वास के केंद्र स्थान में सुसमाचार आता है। So Paul's strategy was go to Rome, put the gospel there, and what Paul is going to do, he's going to open the cage and he is going to let out the gospel lion throughout the Roman Empire. तो यहाँ पर पौलुस की जो रणनीति थी वो ये थी कि वो सुसमाचार को लेके रोम जो शहर था वहां पर खुला छोड़ दे। ऐसे करे कि एक पिंजरे में शेर को लेके आए और उस पूरे शहर में फिर उसको छोड़ दे खुला। So as he is explaining what is the gospel throughout the whole book of Romans, so we have to be right about what is the gospel, right? We all need to ask this question to ourselves: what is the gospel? तो यहाँ पर वो पूरे पुस्तक के अंदर सुसमाचार क्या है, उसमें क्या है, ये सब चीजों को समझा रहा है। तो हमें भी ये बहुत ही स्पष्ट रीति से ग्रहण करने की आवश्यकता है कि हम भी समझे कि सुसमाचार दरअसल में है क्या। So nobody can be wrong about the gospel and have a right relationship with God. Not possible. ये शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति सुसमाचार के गलत शिक्षण को प्राप्त करे और उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो। We have to have a right understanding about the gospel in order to have a right relationship with God. और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में स्थापित होने के लिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पे हमें सुसमाचार के सच्ची परिभाषा को जानने की आवश्यकता है। So all that was just an introduction. Let us come to verse 1, Romans chapter 1 verse 1. और ये तो केवल शुरुआती वाक्य थे, परंतु आइए अब हम पद पर आना चाहते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और पहला पद। Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. That's what this book is all about. It's about कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। So Paul, he is a very talented guy. He can pack a library in one verse. और ये जो पौलुस है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही तालंत सभर व्यक्ति था। वो एक ही आयत के अंदर, एक ही पद के अंदर पूरी पुस्तकालय को भर सकता है। So
that's what we are going to see today. Okay, Romans chapter 1 verse 1. So the first word in Romans chapter 1 verse 1 is the word Paul, a bond servant of Jesus Christ. The first word is Paul. Who is writing this book? Paul. और यहाँ पर हम उसी चीज को आज देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो पद का जो पहला शब्द है, जो वाक्य है, वो ये है कि पौलुस जो यीशु मसीह का दास है। पहला शब्द जो है वो पौलुस है। No, people those days, they were very smart enough to write their names at the very beginning of the letter. No, when I was studying in 10th and 10th classes in the CBSE, we usually, when we write letters, we write our names at the very end. But these people were smart enough to write their names at the very first. और उस समय की जो पत्र लिखने की जो पद्धति थी, उसके अंदर वो लोग बहुत ही चतुर थे। वो अपने नामों को सबसे ऊपर, सबसे पहले लिखते थे। हम जब 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, तब हमें सिखाया जाता था कि हम हमारे नाम को सबसे आखिर में लिखें, परंतु ये लोग सबसे ऊपर पहले अपने नाम लिखते थे। No, I won't be excited to talk to someone if I do not know who that person is. So the first thing I would like to know is that name. We need to identify the person of the book first before we can engage in a conversation. और हम किसी भी प्रकार के वार्तालाप में आगे बढ़े, संचार में आगे बढ़े, इससे पहले सबसे पहली आवश्यक बात यह होती है कि हम जाने हम किससे बात कर रहे हैं। जब तक हमें पता ना हो कि हम किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तब तक उस वार्तालाप में कोई रस नहीं जागता है हमें। So Paul begins this book by addressing himself at the very beginning of the letter. तो यहाँ पर पौलुस जो है इस पुस्तक की शुरुआत को सबसे पहले अपना खुद का परिचय देते हुए कहते हैं कि वो कौन है। So let us ask this question now. Who is this Paul? Who is this guy? तो आइए हम अब ये प्रश्न पूछे सबसे पहले कि ये पौलुस कौन है। Paul says this about himself. He is a former blasphemer. He is a former persecutor of the church. And he also calls himself as the chief of sinners. पौलुस अपने खुद के बारे में कहता है कि वो भूतपूर्व दुर्भाषण करने वाला था, वो भूतपूर्व कलीसिया का सताव करने वाला था, और पापियों में मुख्य पापी वो था, वैसे अपने बारे में कहता है। He hated the gospel. He was a person bent on destroying the gospel, destroying the church of Jesus Christ. और उसे तो सुसमाचार के प्रति बहुत ही घिन और नफरत थी, और वो तो उसके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसको तहस नहस कर दे, नष्ट कर दे। In Acts chapter 7, you would find he is on the way to Damascus. After killing Stephen, he is now going to Damascus to persecute the church. He has got all the letters from the government, to arrest the Christians and drag them back to Jerusalem and stone them to death. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पता है कि प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर वो दमस्कस के रास्ते में जा रहा था। स्टीफन को मरवा डालकर अभी वो दमस्कस के रास्ते पर वहां के मसीही लोगों को सताव करने के लिए जा रहा था। जो भी सरकारी जो भी अनुमतियां चाहिए थी, सब कुछ उसने प्राप्त कर ली थी, और वहां जाकर वो कलीसिया को सताने वाला था। He was a one-man quotation team to destroy the gospel. और वो तो सुसमाचार को नष्ट करने के लिए एक आदमी में जो सेना भरी हुई होती है, वैसे प्रकार का व्यक्ति था वो। And in Romans chapter 9, suddenly something happens to this Paul. He was riding on a horse, and suddenly Jesus blasts in front of him. और प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अंदर एकदम से कुछ होता है। वो घोड़े पर सवार था और एकदम से उसे परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन होता है, और फिर उसके बाद हमें पूरी चित्र बदल जाता है वहां का। He was knocked down to the ground. To persecute the church is to play with God. और is to play with the head of the church. और उसे तो जमीन पर गिरा दिया गया था। कलीसिया का सताव करना, इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ सीधा विद्रोह करना। इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर का जो शीर है, उसके साथ खेल करना। So he asked this question suddenly, who are you, Lord? Now it is very interesting that he answers the question himself. Who are you, Lord? और ये फिर उसके बाद वो वहां पर गिरकर ये प्रश्न पूछता है कि तू कौन है प्रभु। ये बहुत ही रसप्रद बात है कि उसके खुद के प्रश्न के अंदर ही उसका जवाब था कि तू कौन है प्रभु। Now what you find here is Jesus intervening into the affairs of Saul of Tarsus. Jesus was the seeking savior who comes and he saves Saul of Tarsus. Dear brothers and sisters, this is an example of yours and my conversion. और यहाँ पर हम यीशु मसीह को
एक खोजने वाले तारनहार के तौर पर हम प्राप्त करते हैं, जहां पर यीशु मसीह खुद आते हैं पौलुस को बचाने के लिए। वो पौलुस के जो जीवनचर्या था उसके अंदर वो दरमियानगिरी करते हैं। ये तो दरअसल में हम प्रत्येक के बचाए लेने जाने की या फिर हमारे खुद के उद्धार की कहानी है ये। Jesus comes and saves us. It was not me seeking after God. God comes and seeks after me. This is what Paul says in Romans chapter 3. There is none who seeks after God, not one. और यहाँ पर ये जो कहानी में बताई गई है वो ये है कि यीशु मसीह खुद आकर हमारे लिए ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री 3:3 में कहता है कि कोई भी परमेश्वर को खोजता नहीं है, एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको खोजता है। We were all people who were running away from God. We hated God, but it was the Lord Jesus who found us. Even if you happen to be born in a Christian house or even a pastor's son, you are not saved when you are born. You are और हम lost. तो सब पापी थे, हम तो परमेश्वर से दूर रहने वाले, भागने वाले इंसान थे, परंतु ये यीशु मसीह था जिन्होंने हमें खोजा है, हमें ढूंढा है। यदि आप मसीही घर में जन्मे हो, यदि आप किसी पासवान के पुत्र या पुत्री हो, तो भी आप समझ लीजिए कि आप जन्म से बचाए नहीं लिए गए हैं। So Paul was a man who was lost in religion. He was a legalist. He was a religious terrorist. और यहाँ पर पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म में इतना जुनूनी हो चुका था, इतना गुम हो चुका था कि उसे एक धार्मिक आतंकवादी के तौर पे हम देख सकते हैं। But it was Jesus who comes and dramatically intervenes into the affairs of Paul's life, and he does that in our lives as well. परंतु यहाँ पर यीशु मसीह है जो बहुत ही नाटकात्मक रीति से पौलुस के जीवनचर्या के अंदर दरमियानगिरी करते हैं, और उसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी दरमियानगिरी करते हैं। Jesus just came and took total control from Paul's life, and that is what he does with our lives as well. He comes and takes total control, and at that moment you become a slave of Jesus Christ. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है पौलुस के जीवन में दरमियानगिरी करके पौलुस के जीवन का पूरा नियंत्रण अपने पास ले लेते हैं, और वैसा ही यीशु मसीह हमारे साथ भी करते हैं। वो हमारे जीवन का नियंत्रण ले लेते हैं, और जिस क्षण ये होता है उसी क्षण से हम परमेश्वर के दास बन जाते हैं। We all have free will. No, we all have free will, but given our free will, you will never choose God. You will never choose God. हम सबके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, मुक्त इच्छा शक्ति होती है, परंतु यदि हम उसके तरफ ही जाएंगे तब हम परमेश्वर को कभी नहीं चुनेंगे। Because we are born in our sinful nature. So all our inclinations, all our propensities are towards sin. We hate God initially. और हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है हम पाप में जन्मे हुए हैं, इसीलिए हमारे पापी स्वभाव जब हमारे अंदर है तो उस पापी स्वभाव की वजह से हम हमारे अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कभी भी परमेश्वर की तरफ नहीं डलेंगे, हम हमेशा उनसे विपरीत जाएंगे। So it is God who comes and changes our heart. He takes our heart of stone and puts in a new heart, a heart of flesh. That is how we all become born again. तो यहाँ पर जो परमेश्वर है जो परिवर्तन का कार्य शुरू करते हैं, वो हमारे अंदर से इस पत्थर के हृदय को निकाल कर हमारे अंदर मांस का हृदय डालते हैं, और उसी तरह से हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। When God saves a person, He does not save that person 55% and then leave that person to save yourself on your own. No, when God saves a person, He saves them 100%. और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बचाते हैं तब वे ऐसा नहीं करते कि 55% उसे बचाया और बाकी का वो अपने आप पर छोड़ दे, उसके खुद पर छोड़ दे कि तू खुद देख ले अपने आप। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जब किसी को बचाता है तो उसे 100% उसे बचाता है। No, God delights in taking the least likely people for His purposes to make them His messengers. और He परमेश्वर bypasses He bypasses all our thinkings. No, that person is fit to be a good preacher, but God bypasses all that. परमेश्वर जो है हमारे मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं। एकदम निर्बल, एकदम नालायक, निकम्मे ऐसे लोगों को भी चुनकर वो अपने संदेश पे बनाते हैं, अपने संदेश को प्रचारक करने के लिए उनको प्रचारक बनाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, ये बड़ा होके प्रचारक बनेगा, परंतु परमेश्वर वैसा नहीं करते। परमेश्वर अपनी योजना से किसी को चुनते हैं और उसे अपने अनुसार उसके प्रचारक बनाते हैं। Now, can you actually believe this hater of the church, Paul, now becomes the author of the book of Romans?
आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया से नफरत करने वाला अब ये रोमियो जैसी पत्री को लिखता है? The reason why God does this is because God should receive all the glory. और परमेश्वर ये इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर सारे महिमा के योग्य है। So now Paul, we saw who wrote this letter. It was Paul, how he was converted, all those things we saw right now. Now this Paul, he gives three things. He tells us three things about himself in verse 1. अब यहाँ पर हमने पौलुस के बारे में देखा, उसके इतिहास के बारे में, भूतपूर्व जीवन के बारे में देखा, उसके परिवर्तन के बारे में देखा, परंतु अब हम देखना चाहते हैं कि पौलुस तीन अलग अलग बातों को पहले पद के अंदर बताता है। First, he identifies himself as a slave, a doulos. That is a word used in the Greek, doulos. और यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो अपने आप को एक गुलाम कहकर बुलाता है। यूनानी भाषा में यदि देखें तो डुलोस उसे कहा गया है, जो एक गुलाम है। Even before he addresses himself as an apostle, he addresses himself first as a slave of Jesus Christ. और अपने आप को प्रेरित कहे उससे भी पहले, प्राथमिकता में सबसे पहले वो अपने आप को यीशु मसीह के गुलाम के तौर पे वो परिचय देता है। Now I understand in many of our Bibles, English Bibles, the word slave is not used over there. The word is, most Bibles, English Bibles have the word servant. Now that is not an appropriate translation for that word. It is primarily because of the stigma that was attached to the word slave when they were translating the Bible, the apartheid in America and all those issues. यदि हम देखें, दरअसल में बाइबल के भाषांतर में भी, हम अगर हिंदी भाषा में भी देखें और अंग्रेजी में भी वैसा ही है, तो जब भी ये अनुवाद करने की बात थी, जो यूनानी भाषा में से हमारे मुख्य के जो हम जो बोलते हैं जैसी भाषा है, हिंदी, गुजराती वगैरह भाषाओं में जब अनुवाद करने की बात थी, तब उसके अंदर कहीं ना कहीं भाषांतर के अंदर ये जो असली मतलब था वो चला गया था, क्योंकि असली जो मतलब था वो गुलाम था। और गुलामी और भारतीय व्यक्ति या फिर जो अमेरिकी देशों में जहां भाषांतर हुआ था, गुलामी की जो प्रथा थी वो बहुत ही बुरी थी, इसलिए उन लोगों ने गुलाम की जगह पर वहां पर दास शब्द का उपयोग किया था, क्या सेवक। Right. And this word doulos is used at least 150 times in the New Testament. और हम देखते हैं कि कम से कम 150 बार नए नियम के अंदर ये डुलोस या मतलब कि गुलाम शब्द का प्रयोग किया गया है। So this is a very important word. This word actually tells us about our relationship with Jesus Christ. और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये जो शब्द है हमारे यीशु मसीह के साथ के रिश्ते को बताता हुआ ऐसा शब्द है। So firstly, I would like to the word used is not slave but servant. But as I said before, servant is not an appropriate translation. The reason is this: a servant is a day laborer. He is a person who would be hired for a day. He is like today's person who does a 9 to 5 job and then he goes back home. और जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो दास शब्द का उपयोग किया गया है वो उचित नहीं है, क्योंकि कोई दास ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम मजदूरी पर लेते हैं, मतलब कि हम उसको कुछ देते हैं, उसके बदले में वो कुछ नियुक्त समय के लिए आके हमारे लिए कार्य करता है। These servants, they would be standing every day in the morning at the marketplace, and any owner, a malik, would come and they would hire him for a day, and he does his work throughout the day and goes back home. और यहाँ पर ये जो सेवक है या फिर ये जो दास है, ये कहीं सड़कों पे या फिर कहीं पे भी खड़े रहेंगे, या फिर मालिक और जिनको भी जो काम होगा वो लोग आके उनको पैसे देंगे या फिर कुछ काम देंगे, और काम करके खत्म करके वो लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। Yeah, this servant has his own family. He has his own home. He has his own possessions. And if he wants to work the next day, he will again come back in the marketplace and stand there to be hired. और So ये जो you दास run है, your own life. ये जो दास है, इसके खुद के परिवार होगा, उसकी खुद की खरीदी हुई चीजें होंगी, उसके खुद का व्यक्तिगत जीवन होगा। यदि वो कार्य करना चाहेगा तो कल फिर से वहां पर जाएगा और फिर से कुछ ना कुछ काम करके वापस आएगा। उसके खुद का जीवन उसका था। Yeah, that's how it works for a servant, but it is totally different for a slave. Totally और different. ऐसे प्रकार का जीवन एक दास का होता है, परंतु एक गुलाम का जीवन इससे कंप्लीटली परिवर्तित होता है, विपरीत होता है। A slave is
owned. A slave is a piece of property that is bought from the slave market, that is purchased at a very high price. एक गुलाम कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको खरीदा जाता है, जिसको अपनी एक वस्तु की तरह एक बाजार में से जैसे हम लेते हैं उसी प्रकार से गुलाम को भी बहुत ही ऊंची कीमत चुकाकर खरीदा जाता है. Yeah, so the master would come to the slave auction and he would choose among all the slaves whom he wants to buy. And once he is bought, once the slave is bought, he is not free to live as he wants to live. He और यहाँ goes where the पर master goes. और यहाँ पर जो मालिक है वो आएगा और जहां पर गुलामों की नीलामी की जा रही हो वहां पे आके देखेगा कौन सा गुलाम उसके लिए योग्य है, फिर उसके लिए वो कीमत देगा, उसे खरीद लेगा. उसके बाद वो गुलाम का जीवन उसका खुद का नहीं है, जहां मालिक जाएगा वहां उसे जाना है. Yeah, the owner says to him, I now own you. You now belong to me. You are going to work for me. And so he would follow the master and he would do all the assignments and tasks given by the master. और यहाँ पर मालिक कहेगा कि अब तू मेरा है, मैंने तुझे खरीद लिया है. और उसके बाद मालिक जो जो काम देगा, कार्य देगा, उस सब कार्यों को गुलाम को करना पड़ेगा. Whatever the slave needs, the master would provide for his needs. गुलाम को जो कोई भी जरूरतें होंगी वो सब मालिक उसकी पूरे करेगा. And whatever the master asks him to do, he would do that with no questions asked. और जो भी मालिक उसे करने के लिए कहेगा उसके सामने कोई भी प्रत्युत्तर या प्रश्न किए बिना उससे वो कार्य करना पड़ेगा. And if the slave is lazy, he would be disciplined. और यदि ये जो गुलाम है, यदि ये बहुत ही आलसी व्यक्ति होगा तो उसे अनुशासन में लाया जाएगा. So what is Paul calling himself? तो यहाँ पर पौलुस अपने आप को क्या बुला रहा है? He is calling himself a slave of Jesus Christ. यहाँ पर वो अपने आप को यीशु मसीह के गुलाम के तौर पे परिचय दे रहा है. Paul understood very well. He had previously been a slave to sin. He previously was a slave to Satan. But right now, Jesus has bought him. Right now, I am a slave of Jesus Christ. पौलुस को बहुत ही अच्छे से पता था कि आदि सबसे पहले वो पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था, परंतु अब यीशु मसीह ने एक मालिक के तौर पर आकर उसे खरीद लिया है और अब वो यीशु मसीह का गुलाम है. This is what Jesus did. He unexpectedly came into your life and he said, you are mine. और ऐसे ही यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में भी किया. अनुचित या फिर हमने अपेक्षित ना किया हो ऐसे समय में यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि तू अब मेरा है. उन्होंने हमें खरीद लिया. Dear brothers and sisters, Jesus has bought us at the cross with the shed blood. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर के बहते लहू से हम प्रत्येक को खरीद लिया है. That is what it says in 1 Corinthians chapter 6 verses 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit and that you are not your own? You have been bought with a price. Therefore glorify God with your body. और इसीलिए हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6 और 19 पे इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारा शरीर तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है. क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने आप के नहीं हो, तुम्हें खरीदा गया है? So Paul understood this very well, and for the rest of his life, he wasn't following his own agenda. He would go where Christ will send him. He will speak what Christ will tell him to speak, and he will fulfill the master's will for his life. और इसीलिए पौलुस इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ गया था. वो वहां ही जाएगा जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जाए. वो वही बोलेगा जो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो बोले. वो हर एक कार्यों को परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार ही करेगा. Yeah. Now, as soon as Jesus purchases us and we become slaves of Jesus, it doesn't stay there. We are not remaining as slaves throughout our lives. There is a gradual movement happening from being slaves to friends, from being friends to sons and daughters of God. और यहाँ पर हम जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब खरीदे जाते हैं तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजीवन गुलाम ही रहते, परंतु उसके बाद हमारी बढ़ोतरी होती है. हम मित्र बनते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं. And finally, we become sons and daughters who are ruling together with Jesus Christ. We see that in Revelation.
और अंततः महिमावंत समय के दरमियान हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उस समय हम यीशु मसीह के साथ राज करने वाले उसके परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं। So if you are a believer of Jesus Christ, if you are born again, you are someone bought at the cross for the price of the shed blood of our Lord Jesus Christ. तो यदि आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं, यदि आप बुलाए गए व्यक्ति हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है, आप उनके हैं। No slave has a better, more benevolent master than the Lord Jesus Christ. और किसी भी गुलाम का यीशु मसीह के जैसा अच्छा और परोपकारी मालिक नहीं होगा। There is no better loving master than Jesus Christ. He will take care of you. यीशु मसीह के अलावा और कोई प्रेम करने वाला मालिक नहीं होगा, वो आपको संभाल लेगा। He will walk before you. He वो will आपके fellowship with आगे you. चलेगा, आपके साथ संगत करेगा। He will give you life in abundance. वो आपको भरपूर जीवन देगा। And he will open a door that no man can close. और वो ऐसे ऐसे द्वार खोलेगा जो कभी कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा। So it is a privilege to be a slave of Jesus Christ. तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम यीशु मसीह के दास गुलाम होने पाए। So would you like to call yourself, would you like to put your name over there, like Thompson Finney, a slave of Jesus Christ? तो क्या आपको खुद को भी अपना नाम वहां पर रखना अच्छा लगेगा कि मैं खुद यीशु मसीह का एक गुलाम? Now let's come to the next part. Number one, Paul calls himself as a slave of Jesus Christ. Second, he calls himself as an apostle. और यहाँ पर आइए हम दूसरे भाग में आए। सबसे पहले हमने देखा कि वो अपने आप को यीशु मसीह के गुलाम के तौर पर अपना परिचय देता है। दूसरा परिचय वो अपने आप का एक प्रेरित के तौर पे देता है। To be known as an apostle was pretty huge. The basic meaning of the word apostle means someone who is sent. और एक प्रेरित होना ये बहुत ही मान और सम्मान की बात थी। प्रेरित शब्द का अगर मूल अगर हम मतलब परिभाषा देखने का प्रयत्न करें तो प्रेरित एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भेजा गया था। Yeah, this apostle is a person who is sent with a special commission, a special task. He is like an ambassador going to another kingdom. और यहाँ पर ये जो प्रेरित था वो एक वैसा व्यक्ति था जिसको एक स्थित कार्य के लिए या फिर कोई संदेश के लिए उसे भेजा गया था। एक ऐसा देवदूत कह सकते हैं जिसको दूसरे देश में भेजा जाता हो। Now this word apostle can be used in two different ways, one in a general way and one in a specific way. In a general sense, all of us are apostles. We are all sent one. We are all commissioned by the Lord Jesus Christ to go out into the world and tell the gospel. But there is a specific sense of being an apostle. It was being a part of the 12 disciples of Jesus Christ. और यहाँ पर अभी ये प्रेरित होना उसके दो मतलब हो सकते हैं। साधारण मतलब हो सकता है और एक खास मतलब हो सकता है। साधारण मतलब के अंतर्गत में हम प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वासी है, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हम प्रत्येक को भी ये महाआज्ञा दी गई है कि हम जाके सारे देश को सुसमाचार का प्रचार करें, उन्हें बपतिस्मा दें। इस ऐसा कहने से हम भी प्रेरित है, हमें भी भेजा गया है। परंतु खास रीति से यदि हम देखें तो पौलुस यहाँ पर जो लिख रहा है वो कह रहा है कि वो यीशु मसीह की जो 12 चेले थे उसमें का प्रेरित है। Paul is the 13th apostle. और यहाँ पर पौलुस जो है वो 13वां प्रेरित है। Now Paul is using that word apostle in that very specific sense, in that unique sense of being in part of that group of the disciples of Jesus Christ. और यहाँ पर पौलुस यहाँ पर जब प्रेरित अपने आप को बता रहा है तब वो खास रीति खास परिभाषा के साथ अपने आप को प्रेरित बता रहा है। जो यीशु मसीह के चेले थे उसके साथ अपने आप को वो गिन रहा है। During the first century, these apostles were people who received direct revelation from God. It was a time when they had no Bibles with them. No, it was these apostles that received revelations from God and they gave the teachings to the church. और पहली सदी के अंदर ये जो प्रेरित थे, ये प्रेरित ऐसे लोग थे जिनके साथ परमेश्वर सीधी रीति से बातचीत करते थे, अपने प्रकटीकरण अपने देते थे। उस समय कोई लिखित बाइबल तो उनके पास नहीं था, परंतु परमेश्वर सीधी रीति से संचार करके उन्हें बताते थे उन्हें अभी क्या करना है और क्या बोलना है। Paul mentions that he is an apostle not to draw attention to himself.
यहाँ पर पौलुस जब अपने आप को एक प्रेरित कहता है तो उसके पीछे का हेतु ये नहीं है कि वो अपने आप के प्रति सारा ध्यान केंद्रित करे, but the reason why he's saying he's an apostle is because he wants the church of Rome to know who is this person who is writing this letter. It is a person with authority. It is person who is receiving revelations from God himself. So what he is teaching to the church is an infallible truth. What he speaks and what he writes has authority over the church. और यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस अपने आप को एक प्रेरित कहता है तो उसके पीछे उसका मतलब ये है कि रोम की कलीसिया जो है, रोम के लोग जो है, वे जाने कि वो एक प्रेरित है। इसका मतलब ये है कि वो अधिकार के युक्त इन सब बातों को लिख रहा है, बता रहा है, प्रचार कर रहा है, और इसमें से कही गई या लिखी गई कोई भी बातों में कोई गलती कभी नहीं हो सकती है। वो अधिकार के साथ उस अधिकार को व्यक्त करता है। So all pastors, elders, congregation today, they are under the authority of the apostolic teaching that they had given us during those days. इसका मतलब है कि हर एक पासवान, हर एक ले आगेवान या फिर हर एक जो भी मंडली है, वो सभी जो है वो इस प्रेरित के जो अधिकार है उसके अंतर्गत आती है, उनके शिक्षण के अंतर्गत आती है। So today all of us, all Christians around the world, we are under the authority of this apostolic teaching in the scriptures. तो इसीलिए पूरे विश्व भर में जितने भी मसीही लोग हैं, वे सब भी ये जो प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई जो बातें हैं, उस अधिकार के अंतर्गत हम सब आते हैं। So this letter is from an apostle, Paul. तो इसका मतलब ये जो पत्री है, ये प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। Yeah. Now Paul also says, now in verse 1, we are still in verse 1 itself, okay? So Paul says he is called as an apostle, the next part of this verse. He is called as an apostle. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है वो इसी पद, हम पहले पद में ही अभी भी वो कह रहा है कि उसे एक प्रेरित के होने के लिए बुलाया गया है। Now he wants to know, he wants us to know that this was not his idea to become an apostle. He did not sign up to become an apostle. He was not self-promoting. He did not volunteer for this. और यहाँ पर पौलुस हमें जो बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो ये है कि ये प्रेरित पद के लिए उसने अपने आप को नियुक्त नहीं किया था। वो अपने आप ये बढ़ा चढ़ाकर खुद को वैसे बताना नहीं चाह रहा था। He was called by Jesus Christ himself to be an apostle. He was sovereignly chosen by God to be an apostle. परंतु उसे तो यीशु मसीह के द्वारा एक प्रेरित बनने के लिए नियुक्त किया गया था, बुलाया गया था। परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा के अंदर उसे एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था। This is why Jesus, when they were having the Lord's Supper, his final day with his disciples, he looks at their eyes and he tells them, "You did not choose me, but I chose you." और इसीलिए यीशु मसीह भी जो है अंतिम भोज के समय जब वे अपने चेलों के साथ आखिरी वार्तालाप कर रहे थे, तब उनके आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। This was not a job description that was posted one day in the newspaper, apostle wanted. No, if you want to be an apostle, send your resume, we'll have an interview. No. और ये कोई भी प्रकार का नौकरी का इश्तिहार नहीं था जो हम अखबारों में पाते हैं कि हमें एक प्रेरित की जरूरत है, तुम आओ, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, फिर तुम्हें चुनेंगे। ऐसा नहीं था कुछ भी। To be an apostle, you had to be sovereignly chosen by God himself. एक प्रेरित होने के लिए परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा में तुम नियुक्त किए होने चाहिए, तभी तुम एक प्रेरित बन सकते हो। And regarding Paul also, God says in Acts chapter 9 verses 15 to 16, Jesus says about Paul, "This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel." और इसीलिए हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 9 और 15-16 में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये एक ऐसा पात्र है जिसे मैंने नियुक्त किया है ताकि विदेशियों में, राजाओं में और प्रजाओं में वो मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा। I will show him how much he must suffer for my name. मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कितना दुख उठाना पड़ेगा। See, that is an apostle. He has to suffer for God's name, for और God's यहाँ sake. पर ये प्रेरित है जिसे यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा।
we live at a time when many people like to flaunt around with the word apostle in front of their names. और हम ऐसे समाज में जी रहे, ऐसे समय में जी रहे जब लोगों को अपने नाम के आगे ये प्रेरित शब्द अपने आप लगाकर अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताना अच्छा लगता है। But here Paul clearly says that an apostle is someone who has to suffer for Christ's name. परंतु यहाँ पर पौलुस बहुत ही स्पष्ट बात हमें समझाता है कि एक प्रेरित ऐसा व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह के लिए दुख उठाना पड़े। Now, again, coming back to Galatians chapter 1, verse 15 and 16, this is what it says. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace. You see, Apostle Paul was called even before he was born into this world. और यहाँ पर हम देखते हैं फिर से एक बार गलातियों की पत्री 1:15 और 16 में लिखा है कि परमेश्वर की जब इच्छा हुई उसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बताता है कि उसके जन्म होने से पहले उसे बुलाया गया था। Yeah, so he was set apart from his mother's womb. Even before the foundations of the world was laid, he was called by God. He was chosen. He was predestined. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संसार की नींव डाली गई उससे भी पहले उसे चुना गया था, उसे बुलाया गया था अपने माँ के गर्भ में आने से पहले, मतलब कि उसे पहले से ही उसे चुना गया था, उसे परमेश्वर की इच्छा में उसे नियुक्त किया गया था पहले से। So this is what it means, called to be an apostle. This is what it means when Paul says that. अभी इसका मतलब सचमुच में ये है जब वो पौलुस कहता है कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। Now, dear brothers and sisters, God has marked out a path for you as well. God is leading the course of your life. He is always ahead of your life. God knows what you will be doing 5 years from now. परमेश्वर जो है मेरे प्यारे मित्रों, वो हमारे जीवनों में दरमियानगिरी करता है, उन्हें सब कुछ पता है, वो सर्वज्ञ है और उन्हें ये भी पता है तुम्हारे आगे के 5 सालों में तुम क्या करने वाले हो और क्या नहीं। उनके नियंत्रण में सब कुछ है। So everyone who is chosen by God is called for a specific task in his kingdom. तो हर एक व्यक्ति जिनको परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए कोई ना कोई कार्य करने के लिए उसे चुना गया है। Now let us come to the next part of that verse. Set apart for the gospel of God. तो आइए हम तीसरे भाग में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। We are all separated for the gospel of God. हम सबको परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। Now, you may be working as a lawyer, you may be working as a real estate agent, a school teacher, a car mechanic, a barber, but the purpose of your life is this: you are set apart for the gospel of Jesus Christ. अभी शायद हो सकता है कि आप व्यवसाय से एक नाई हो या फिर आप व्यवसाय से कोई प्रकार के वकील हो या अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में आप क्यों ना हो, परंतु हर एक व्यवसाय के पीछे आपको जो हेतु दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, वो ये है कि आप उनके सुसमाचार के लिए अलग किए गए हैं। The reason why we are breathing right now is because to get the gospel out far and wide. That is the only purpose of our life. हमारे जीवनों का एकमात्र हेतु, हम जो सांस लेते हैं वो भी इसीलिए लेते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार अलग अलग जिस जगहों पे पहले प्रचार ना किया गया हो वैसे वैसे जगहों पे जाए। And that is what Paul says, set apart for the gospel of God. If we are not preaching the gospel to the people, we are wasting our time in this world right now. तो इसी बात को पौलुस कहता है कि सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यदि हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, लोगों को हम बताते नहीं है सुसमाचार के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो जीवन दिया गया है उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। So I have been throwing around this word gospel for a long time. Now let me just explain that what is the gospel? A very important question that you need to ask in your life. What is the gospel? अब मैं कब से काफी बार, इतनी बार मैंने सुसमाचार में ये बोलते जा रहा हूं, परंतु अब मैं बताना चाहता हूं कि सुसमाचार का मतलब क्या है। हमें सबको ये जानने की आवश्यकता है कि सुसमाचार दरअसल में है क्या। The word gospel means good news. सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार।
good news. So what is, I need to tell the bad news before telling about the good news, right? तो सुसमाचार कहने से पहले मुझे कुसमाचार कहने की आवश्यकता है ना। So what is the bad news? The bad news is this: we have all sinned. We have all rebelled against God. तो ये जो कुसमाचार है वो ये है कि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। And because we have rebelled against a holy, righteous God, his wrath is upon all the sons of wickedness, is upon all the unrighteous people in this world. तो क्योंकि हमने इससे पवित्र और धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसकी वजह से उनका जो क्रोध है, उनका जो कोप है, ये इस पूरी बुरी और दुष्ट मानव जात के ऊपर है। But the fact is this: we cannot save ourselves. We cannot save ourselves through our own good karma, good charity works. No, you cannot save ourselves, because all our good works, all our good deeds has selfish motives behind it. और जो दूसरी जो स्पष्ट और सच्चाई की बात है वो ये है कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। कोई भी अच्छे कर्म से नहीं बचा सकते हैं, कोई भी अच्छे पुण्य के काम से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे स्वार्थी जो हमारे ध्येय है उनसे भरे हुए होते हैं। So how can mankind be reconciled back to a holy, righteous God? How is it possible? तो फिर ये जो मानव जात है ऐसे पवित्र और धर्मी परमेश्वर के साथ के रिश्ते में पुनर्स्थापित कैसे हो पाएगी? ये कैसे होगा आगे जाके? By man, this is impossible. So what God does is God sends his only son, Jesus Christ, into this world to die on the cross for our sins on our behalf. And he lives a perfect life. Even before dying on the cross, he lives a perfect life. And that life he was living on our behalf. और यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो क्या परमेश्वर है, जो वो क्या करते हैं? परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए हमारी जगह ले। वो यहाँ पर पृथ्वी पर आकर भी उस क्रूस पर जाने से पहले भी एक सिद्ध जीवन को जीते हैं, एक पर्याप्त जीवन को जीते हैं, जिससे कि वो हमारी जगह उस जीवन को जीते हैं वहां पर। Yeah, he could have come directly into this world and gone directly to the cross. No, but that didn't happen. He lived a perfect, righteous, holy life for 33 years in our place. ऐसा भी हो सकता था कि वो तुरंत इस पृथ्वी पर आ जाए और तुरंत ही क्रूस पर चला जाए, नहीं, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो यहाँ पर आए, जन्म लिया और जन्म से 33 साल तक एक सिद्ध पर्याप्त जीवन वे इस पृथ्वी पर जिए। And finally, he died on the cross on our behalf for our sins. और अंत में हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के कारण अब क्रूस पर अपना प्राण दिया। And it does not end there. He finally rose again on the third day. That means he paid for all our sins, complete, paid in full. और वहां पर भी वो अंत नहीं हुआ, परंतु उसके बाद भी तीसरे दिन वे पुनरुत्थित हुए, मतलब कि हमारे पापों की पूर्ण कीमत जो है वो वहां पर चुका दी गई है। So, dear brothers and sisters, Jesus has done all the good works that you were supposed to do in the book of Old Testament. All the laws in the Old Testament, Jesus fulfilled it on your behalf. तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने पुराने नियम में जो भी नियम, जो अच्छे काम थे या फिर अपने जो जीवन के बारे में जो बात थी, वो सब यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की। जो हमें करनी थी वो उन्होंने हमारी जगह पे की। That is the good news. That is the good news. You don't need to work very hard. और ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है कि हमें बहुत ही परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। You cannot tell a better news than this to any people in this world. इस संसार के अंदर के लोगों को तुम इससे अच्छा कोई समाचार नहीं दे सकते हो। And you will never hear a better news than this good news. और ये सुसमाचार के अलावा, इससे अलावा और कोई अच्छा समाचार आप सुनोगे भी नहीं। Now finally, how is this verse ending? It says it is the gospel of God. The gospel, whose gospel is this? The gospel of God. अब ये पद का अंत कैसे होता है? इस पद के अंत पे हम देखते हैं सुसमाचार किसका है? ये परमेश्वर का सुसमाचार है। God is the author. God is the architect. He is the source of this gospel message.
और ये सुसमाचार का जो संदेश है, उसके लिखने वाले, उसके सर्जनकर्ता एकमात्र परमेश्वर है, इसके श्रोता This परमेश्वर। this God, this gospel idea, this gospel concept did not originate in this world. It did not originate from one of the brilliant minds in this world. No. और इस संसार में के कोई बुद्धिमान व्यक्ति के मन से या फिर उसके विचारों से ये सुसमाचार का पूरा विचार नहीं आया था। This gospel message was not drafted by any church denomination. It was not drafted by any preacher, any author. किसी भी प्रकार के प्रवक्ता या फिर लेखक या फिर कलीसिया के संप्रदाय के द्वारा ये जो सुसमाचार का जो पूरा विचार है वो नहीं गढ़ा गया था। This is an out of the world message. ये जो संदेश है वो तो इस संसार के बाहर का संदेश है। Yeah, in none of our minds this idea of salvation would have dawned upon any one of us, right? No, even if you gather right now, you gather all the geniuses, put them in groups, let them think together for 7,000 years, if that was possible. Let them think through. Even then, they would not have come up with this idea of salvation. मैं तो कहता हूं कि ये उद्धार जैसा विचार है वो हमारे मनों में भी कभी नहीं आता था। इस विश्व के सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को जमा करो, एक जुट में बिठाओ, 7,000 साल तक सोचने के लिए, विचार करने के लिए उनको बिठाओ, तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि उनके विचार में तब भी ऐसे उद्धार का विचार नहीं आता था। Who among us would have thought that God himself would send his son into this world to die on the cross for our sins? Who in the world thought that God would be born through a virgin? और हम में से कौन ऐसा सोच सकता था कि परमेश्वर अपने खुद के बेटे को हमारे लिए उस क्रूस पर प्राण देने के लिए वे भेजेंगे? हम में से कौन सोच सकता था कि परमेश्वर खुद एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लेंगे? Who in the world could be fully God and fully man? Who would have come up with such ideas? Not possible. ऐसे विचारों Not के साथ anyone. कौन आगे आ सकता था कि परमेश्वर जो है संपूर्ण मानव है और परमेश्वर जो है संपूर्ण परमेश्वर है? And who would think that the Son of Man would come and die on a cross, one of the most heinous punishments anyone can receive in this world? और कौन सोच सकता था कि क्रूस जैसी शर्मजनक और जैसी बदनामी वाली जगह पर यीशु मसीह जो परमेश्वर है वे खुद आकर हमारे लिए अपना प्राण देंगे? And who in the world thought that this man would rise up from the dead? और हम में से किसने ऐसा सोच पाते थे कि ये जो व्यक्ति है वो मृत्यु में से भी वे पुनर्जीवित होंगे, फिर से जीवन में आएंगे? So no one in this world, not even the smartest minds, would have come up with this gospel message. That is why Paul clearly says it is the gospel of God. तो हम में से कोई भी बुद्धिमान इस संसार के व्यक्ति ये जो है ये सुसमाचार के विचार को यहाँ पर नहीं ला सकते थे। इसीलिए पौलुस बहुत ही स्पष्ट कहता है ये सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का है। You know what all of us would have come up with? We would have all come up with ideas like, I will do good works, I will pay to charity, and then I will make my way to heaven. हम लोगों में कैसे विचार आते थे? आपको पता है, हम सोचते थे कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं दान पुण्य करूंगा, मैं अच्छे अपने आप के प्रयत्नों से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। Now this good news is that it is a free gift. और Now अब ये Paul, सुसमाचार है वो ये है कि ये एक मुफ्त भेंट है। Now for the entire book of Romans, Paul is now taking us through this gospel message. He is now going to open the curtains. He is going to show us all the diamonds, the jewels, the beauties of the gospel throughout the book of Romans. और अब इसके बाद अभी रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस जो है सुसमाचार को प्रदर्शित करने वाला है। सुसमाचार में जो हीरे मोती जड़े हुए हैं उन सब बातों को वो भी यहाँ पर इस पुस्तक के द्वारा प्रदर्शित करने वाला है, रोमियो की पत्री के द्वारा। And finally, it is the gospel of God. और अंततः जो है ये परमेश्वर का सुसमाचार है। It tells us, the definite article there tells us that there is only one way of salvation. There is only one gospel, and we are supposed to be willing to be burned as a martyr for this one truth.
और यहाँ पर ये जो सुसमाचार के आगे जो स्पष्ट बात जो बहुत ही जोरों के साथ यूनानी भाषा में भी लिखी गई है वो ये है कि ये एकमात्र मार्ग है, ये एकमात्र मार्ग है जिससे कि हम बचा लिए जाएंगे। ये एकमात्र सुसमाचार है और इस सुसमाचार के There, लिए भले ही हमें उस लकड़े पर जलाया भी दिया जाए तो भी हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। there is no other way for salvation other than the Lord Jesus Christ. And that is what Peter and all the apostles had to say when they were confronted to stop preaching. This is what Peter had to say. There is no other name by which mankind can be saved, but only through the name of Jesus Christ. और ये सुसमाचार जो है ये एकमात्र रास्ता है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है वो प्राप्त करता है। इसीलिए ही पतरस और अन्य चेलों को या फिर प्रेरितों को भी ये कहना पड़ा था जब उन्हें सुसमाचार प्रचार करने से रोका गया था। पतरस को भी ये कहना पड़ा था कि इस संसार में कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे कि हम बचा लिए जाएंगे। So that's it. We are done with Romans chapter 1, verse 1. The gospel is the only solution for your problem, your sin problem. तो आज हमने ये रोमियो की पत्री 1 और 1 का अभ्यास अभी यहाँ पर खत्म किया। ये सुसमाचार एकमात्र उपाय है जो हमारी समस्या को सुलझा सकता है, हमारी पाप की समस्या को सुलझा सकता है। And the only way to receive this gospel message is by believing on the Lord Jesus Christ, by repenting of your sins right now. और एकमात्र मार्ग है जिससे कि आप इस सुसमाचार के जो संदेश है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है और अपने पापों का प्रायश्चित करने से है। अभी It is only there that you will find the salvation that you greatly need for your life. और ये एकमात्र जगह है जहां पर आपके जीवन के लिए आपको जो उद्धार की आवश्यकता है जो है वो आपको वहां पर मिलेगा। So that's it. We are done with Romans chapter 1 verse 1. I want God's best for your life. That is why I was spending this much time in just one verse, Romans chapter 1 verse 1. और अभी हमने रोमियो की पत्री 1 और 1 में देखा। मैं चाहता था कि परमेश्वर आपको श्रेष्ठ सिखाए, इसलिए हमने केवल एक ही पद को देखा, रोमियो की पत्री 1 और 1। Let us all bow down our heads. Let us look to the Lord in prayer. Heavenly Father, you are a good God. Lord, thank you, Lord, for calling us out from this world while we were dead in our sins and trespasses. We had no meaning, we had no purpose in our lives. But thank you, Jesus, for calling us from out of this world. And thank you, Lord, that we have the privilege to be your slave today. You are our master. We have no better master than you, Jesus Christ. And help us to walk in all your ways. Help us to follow what you have commanded us to do, Father. And we know that by our own strength that this is impossible. And you have given us your Holy Spirit to guide us and lead us through to obey and understand your word, Lord. Thank you, Jesus, for speaking to us through Romans chapter 1, verse 1. I thank you, Father, also for the ministry of Dauntless Pulpit. Thank you, Lord, for enabling them to broadcast the gospel message as far and wide as possible, Lord. I thank you, Lord, for this wonderful platform you had given us, Lord, to speak from God's word. May all of God's people be blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.